Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss class 12th history. Class 12th history, chapter Kings, Farmers and Towns. Dear student, as you know that in this chapter, in my study class, what we read? We discuss about the chapter topic, the rise of Magad. Rise of Magad. It means how Magad became the most powerful empire during 6th century BC. It means during 6th century BC, how Magad became more powerful than other Mahajanpad. This point is very important, and on the basis of this point you can easily understand, and it is helpful for us to understand that how the Magad become powerful. And second thing which you have to understand कि मगध जो 16 महाजनपदों में था, 60 महाजनपदों में था, कैसे मगध became पावरफुल एम्पायर, ये शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम इन चीजों से समझ सकते हैं. My dear student, I hope you are getting understand that this topic, because in my study class I given the topic, I given the points, on the basis of that you can easily understand the information that you have to understand. So my dear student, Magad became powerful, more powerful than other Mahajanpad. Why? What was the reason behind that? The question mark. This question come into your mouth. आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए. आपके जहन में ये प्रश्न इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमने कल इन चीज़ों पे बातें की थी और हमने कहा था कि मगध की जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल थी. मगध को वो सारी चीज़ें एक आदर्श अवस्था उपलब्ध करा रही थी जिससे मगध एक पावरफुल एम्पायर के रूप में कन्वर्ट हो रहा था. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. एंड वन मोर थिंग आल्सो इन्फॉर्म यू, द थर्ड पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द वासुदेव शरण अग्रवाल, VS Agrawal, what? According to him, the first millennium BC, it means 1000 BC2, 1000 BC2, the 500 BC, this era would be called महाजनपद एरा. VS अग्रवाल ने कहा कि 1000 ईसा पूर्व से 1000 BC से 500 BC के काल को यदि आप लें तो इसको आप महाजनपद एरा के नाम से जान सकते हैं. महाजनपद एरा
Why I am telling Mahajanpad era? Because during that time, not only in the northern part of India, but also in the southern part of India, we had observed, if you will mildly observe about the text, about the archaeological findings, about the other things, it is very clear that the 16th Mahajanpad was habited during that time. उनका स्थापना हो चुकी थी. Except 16 Mahajanpad, nowadays the modern historians believe that कि आज भारत में 16 महाजनपदों के अलावा और भी महाजनपद, इससे भी अधिक महाजनपद रहे होंगे. जैसे पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में, पाणिनि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने. पाणिनि का अष्टाध्यायी. Parni was the great grammarian during 6th century BC. He explained the 22 Mahajanpad. This is very important. Second thing, if you will observe the Panchamarga, according to them, Mahajanpad was flourished not only northern part, India, but also it was spread on southern region. This is the new research. अब इनको मैप पे देखिए. If you will see this map, this is Indian continent map. The northern part of India, the 15 Mahajanpad, and Asmak, sometime Aswak, इसकी कैपिटल क्या थी? पोतर, पोटन और पोटली. वो आंध्र प्रदेश में, एपी में, आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के तट पर स्थित था. लेकिन और भी छोटे छोटे स्टेट रहे होंगे साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ऐसा मानना है बात के इतिहासकारों. वो कहते हैं कि अगर हम पंचमार्ग के आधार पर देखें तो हमें पंचमार्ग साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखाई देता है. 1990 में जब कर्नल कोल्डविल ने पंचमार्ग ढूंढा कोयम्बटूर के, केरल के कोयम्बटूर से, तो ये प्रूव कर रहा था कि ये वहां पे कैसे पहुंचा. हाउ कैन इट वुड रीच देयर. व्हाट आई वांट टू टेल यू, डियर स्टूडेंट, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट कि दिस वाज द मीडियम, दिस वाज द path for the information about महाजनपदास की. हमने एक चीज देखा कि 16 महाजनपद जब भारत में बने, इंडियन कॉन्टिनेंट में बने, उसमें कुछ चीजों का विस्तार हुआ था. कौन कौन सी चीजें विस्तृत हुई थी? वो चीजें थी मार्केटिंग, वो चीजें थी क्वाइंस, वो चीजें थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो चीजें थी रिलीजियस रिवोल्यूशन, वो चीजें थी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. तो इस आधार पे क्वाइंस सबसे महत्वपूर्ण रोल था ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए. और क्वाइंस के रूप में पंचमार्ग, व्हिच वाज द फर्स्ट नेशनल क्वाइंस ऑफ इंडिया,
that was found in the southern part of India. So that's why we can say that it may be possible कि महाजनपद साउथ में रहे होंगे. मैंने आपको बताया था चुल कलिंग जातक, चुल निधेश, महावस्तु, कथा सरित सागर, तमाम सारे बौद्ध और जैन ग्रंथों में साथ साथ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया. अब आज सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? फर्स्ट व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ मगध बिकम द मोर पावरफुल. मगध कैसे पावरफुल बना. आइए देखते हैं इन चीजों को एक बार. This is very easy to understand that how Magad become more powerful. Rise of Magad. राइज ऑफ मगध को समझने के लिए इसको हम कई सारे कैटेगरी में बांटेंगे और फिर इनके आधार पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. पहला, फर्स्ट, इट वुड बी political causes. पॉलिटिकल काज क्या था भाई? कहता है कि अगर आप देखें तो मौर्य डायनेस्टी तक के पहले के शासकों के बारे में, हर्यंक, डायनेस्टी, देन आफ्टर शिशुनाग, dynasty, then after Haryang, Shishunag, Nanda, then after Mauryan dynasty, then after Sungas. And then after the Kusanas and Satvahans. चलिए हम कुसाना और सातवाहन को नहीं काउंट करते हैं, हम सिर्फ सुंग तक पढ़ते हैं, सुंगा डायनेस्टी तक. हर्यंक में बिंबिसार, अजात शत्रु, उदाई भद्र, शिशुनाग स्वयं था, कालाशोक. ये कालाशोक कौन था? We will discuss the Buddhist Council in the chapter 4, where I discuss the second Buddhist Council किसके समय हुई थी. सेकेंड Buddhist Council इसी कालाशोक के समय हुई थी, वैशाली में. तो कालाशोक, नंदवंश, महापद्मनंद, एंड घनानंद, मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, और फिर सुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र, अग्निमित्र, इसके बाद तमाम सारे.
especially the rise of Magad during 6 to 4th century, अगर इस काल के बीच पढ़ेंगे 4th सेंचुरी बीसी तक, तो हमें मौर्यन तक पढ़ना पड़ेगा, या 3rd तक लाते हैं, 3rd तक तो मौर्यन तक पढ़ेंगे। लेकिन अगर 2nd और 1st तक लाए हम, 2nd सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी बीसी, वी हैव टू टेक द सुंगा डायनेस्टी आल्सो। तो अब पॉलिटिकल रीजन में इतने एपल किंग्स थे, राजा थे, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को डेवलप किया, मौर्य साम्राज्य के विकास, मगध के विकास में योगदान दिया। मगध को एक इंपीरियल फॉर्म में बनाने का काम इन महानतम राजवंशों ने किया। दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द डेट्स एंड okay, so without date, the meaning of this explanation is not so good. Okay, let us discuss. आइए बात करें 544 to 444 BC, 544 से 594, 594 फिर 444 BC तक हरियांग वंश। Then after Sisunangban, 444 to 366 BC. Then after Nandwal, 366 to 322 BC. Then after Mauryan dynasty, 322 to 184. And then after Sunga dynasty, 184 to 148 and later. This was the time period. They did very hard work कि मगध एक संपूर्ण और विकसित राज्य में। हम जब इनकी अपॉर्चुनिटीज को बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इन राजाओं ने मगध के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप यहां पे पॉलिटिकल कॉजेज में लिख सकते हैं द एबल रूलर्स, हु रूल्ड ऑन मगध एंड एक्सपेंड इट, फैलाया, विस्तार किया साम्राज्य का, दूर तक के क्षेत्रों में इसका फैलाव हुआ। तो ये हुआ फर्स्ट रीजन, ये था पॉलिटिकल कॉजेस। आई होप कि आप इसको समझ गए। अब सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं। पॉलिटिकल कॉजेस में हमने देखा डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और डायनेस्टीज के राजाओं के बारे में पढ़ा। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद, गणानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एंड पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र जैसे योग्य शासक हुए। आपके इस चैप्टर में 6th सेंचुरी बीसी टू 6th सेंचुरी एडी तक का काल पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी तक काल लाइए। आप इसमें कुछ और लोगों के नाम जोड़ सकते हैं। सातवाहनों के साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे, कुषाण के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे थे इंडिया के, लेकिन कुषाणों के सिक्के चंपा तक मिले, अंग तक मिला। इट मे बी पॉसिबल कि मगध भी उनके राज्य में रहा होगा। तो आप एक संपूर्ण एक विकसित भारत को देख सकते हैं इस काल में। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो हुआ पॉलिटिकल कॉजेस। सेकेंड कॉजेस पे बात करते हैं, और वो सेकेंड कॉजेस होगा पॉलिटिकल के बाद इकोनॉमिकल कॉजेस। सेकेंड कॉजेस में इकोनॉमिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज में यदि आप देखें तो यहां पे कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे फर्स्ट, कहां पे था मगध? दोआबा, गंगेटिक रीजन में। गंगेटिक रीजन इज मीन फर्टाइल लैंड,
क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। आयरन माइंस होने के कारण आयरन इक्विपमेंट्स, आयरन इक्विपमेंट्स थे वहां पे, लोहे के हथियार, एग्रीकल्चर, और आर्मी पर्पस। देन आफ्टर नेविगेशन फैसिलिटी, नेविगेशन फैसिलिटी डेवलप थी, रिवर और लैंड रूट्स थ्रू रिवर, mode of communication, was developed, industry, trade and commerce was developed, and thereafter tax and लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये सारे रीजन्स थे इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक कारणों में। अब देखिए इकोनॉमिक कॉजेज में क्या थे, पहला गैंगेटिक रीजन्स में था, फर्टाइल लैंड थी, और जब फर्टाइल लैंड होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन होंगे, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो एक ऐसा ग्रुप आ जाएगा आर्टिसियंस का, जो कि प्रोडक्ट करेगा, गुड्स का निर्माण करेगा, वस्तुएं बनाएगा, और इन वस्तुओं का निर्माण करके जब प्रोडक्शन तेजी से होगा तो फिर मार्केट आर्टिसियन आएगा, प्रोडक्शन होगा, मार्केट्स बनेंगे, और फिर पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, सीक्वेंस वाइज चले तो। देन आफ्टर आयरन माइंस होने के चलते आयरन के उपकरण, धातुएं, अब प्लग में जो लोहे का हल था, हल लोहे के बनाए जाने लगे, तो गहरी जुताई होती थी, गहरी जुताई से प्रोडक्शन होते थे। नेविगेशन फैसिलिटीज, रिवर न केवल स्ट्रेटेजिकल वे से अच्छी थी बल्कि इन्हें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल कराती थी, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम थ्रू लैंड रूट, थ्रू रिवर रूट, और इसके साथ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉपर डेवलप हुए, और सबसे महत्वपूर्ण टैक्सेशन सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड। अर्थशास्त्र पढ़िए, if you know about that Arthashastra, on the basis of that you can easily understand that the Kautilya, it means Chandragupta's teachers, Chanakya, who given the proper information about the tax and taxation system during Mauryan administration. तो ये सारे रीजन्स हैं, एक्सेप्ट इट अदर आल्सो, आप इनके साथ और को जोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज आर द रीजन्स जो कि मगध के डेवलपमेंट के कारण बन रहे थे। आई होप कि आप इन चीजों के आधार पे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिकल कॉजेज में गंगेटिक रीजन्स में होने के कारण फर्टाइल लैंड, सरप्लस प्रोडक्शन होने के चलते आर्टिसियन डेवलप हुए, सेल्फ डिपेंडेंट हुए उन अनाजों पे जो सरप्लस से आती थी, प्रोडक्शन हुआ, मार्केट बने, उससे टाउन और सिटी का डेवलपमेंट हुआ। देन आफ्टर आयरन माइंस, आयरन इक्विपमेंट बनने से न केवल मिलिट्री पर्पज के लिए
बेनिफिशियल थी वो, बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी बेनिफिशियल बनी. नेविगेशन फैसिलिटीज, इट मीन्स चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो दैट वाज डेवलप्ड फॉर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड देन आफ्टर टैक्स. ये सारी चीजें थी जो प्रॉपर फॉर्म में डेवलप कर रही थी. चलिए ये हुआ. नेक्स्ट देखिए अगला, और क्या कॉजेस थे. नेक्स्ट कॉजेस, थर्ड कॉजेज है, थर्ड कॉजेज है जियोग्राफिकल कंडीशन. जियोग्राफिकल कंडीशन, it was also helpful for the rise of the Mughal. How? The Patliputra that covers 5 पहाड़ियों से, 5 माउंटेन से, से घिरा हुआ था. साथ ही साथ फॉरेस्ट, और साथ ही साथ गंगा एंड सोन रिवर. अब एक साथ 3 चीजें इनको अवेलेबल हो रही थी. अगर हम डेमोग्राफी की बात करें पाटलिपुत्रा की, तो डेमोग्राफी ऑफ पाटलिपुत्रा इट इज वेरी क्लियर कि एक तरफ 5 पर्वत थे, दूसरी तरफ जंगलों से घिरा हुआ था, और तीसरी तरफ पूरब में ये गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था. तो अब अलग अलग जगहों से क्या मिलती थी. देखिए माउंटेन से इनको सिल्वर, आयरन, फॉरेस्ट से इनको वुड, एलिफेंट, और गंगा एंड सोन रिवर से इनको कई सारी चीजें, अ सीरीज ऑफ फैसिलिटीज दैट वाज अवेलेबल. किससे? गंगा और सोन नदियों से. क्या क्या मिलती थी, मैं कुछ काउंट करा देता हूं. जैसे चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट, सेकेंड सिक्योरिटी, थर्ड फिशरीज इंडस्ट्री, फोर्थ फर्टाइल लैंड, ये सारी चीजें इनको यहां से मिल जाती थी. तो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी इनके लिए हेल्पफुल थी. इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध. चलिए ये था हुआ थर्ड पॉइंट. अब बात करते हैं पॉइंट 4 की. अगेन अगर इसको बात करें ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, डेमोग्राफी की, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट. ओके, द फोर्थ कॉज इज दैट इज द रिलीजियस कॉजेस, धार्मिक कारण. 6th century BC में not only in India but also whole world, the different social reformer, they given the message for their society, like Kangji in China, Zarathustra in Iran, Plato, Aristotle and Socrates, they were in Greek. Similarly, Confucius in China, Kangji in China, and in India, Buddhism and Jainism, like the anti-reactional religious sect, किसके? ब्राह्मणिकल रिलीजन के विरुद्ध. Buddhism and Jainism and other 64 sects also play a very important role लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने की. उन्होंने हर उस चीज का विरोध किया जो
व्यक्ति के अंदर, जो लोगों के अंदर इस भावना का विकास करती थी कि वो व्यक्ति को जन्म के आधार पर छोटा, जाति के आधार पर छोटा, जो यज्ञ कांड थे, जो बलि चढ़ाई जाती थी, उन पे रोक, वेदों की अपौरुषता उन पे रोक, भगवान के अस्तित्व इस पे रोक, न मानना, इस तरह के तमाम सारे चीजों को उन्होंने खंडित कर दिया और कुछ नहीं दिया, राइट टू इक्वलिटी के आधार पे। तो ये जो महत्वपूर्ण रोल थे, ये जो स्टेप्स थे, दैट वाज टेकन बाय द न्यू रिलीजियस टीचर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज आल्सो play a very prominent role in the rise of Magad, Buddhism and Jainism. If you will observe about the main teacher of Buddhism and Jainism, I am saying about Mahavir Swami and Gautam Buddha. The Bodh Gaya, that is situated in the nowadays Gaya, near Patliputra, Patna. Vaisali, where the birthplace, Vaisali, that is birthplace of Mahavir Swami, 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। इन लोगों ने एक नई क्रांति लाई, सोशल रिवोल्यूशन लाया, और ये क्रांति एक बड़े स्वरूप में डेवलप हुई, विकसित हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, चलिए, ये तो हुआ 4 रीजन। अब एक और रीजन की बात कर लेते हैं। अगर हम कल्चरल पे बात करें, सांस्कृतिक कारणों पे बात करें, तो मगध पे मैंने कल आपसे कहा था, आई हैव इन्फॉर्म यू दैट अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट सतपथ ब्राह्मण, गौतम विदेह माधव, द स्टोरी ऑफ विदेह माधव स्टार्टेड टू एक्सपेंड द आर्यन कल्चर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सब सैंधो प्रदेश से वो पूरब की ओर बढ़ा, मुंह में आग की ज्वाला लेते हुए, वैश्वानर। और वो जब पूरब की तरफ बढ़ा तो सदानीरा के तट पे आके उसकी ज्वाला बुझ गई, और वो कहता है कि यहाँ के लोगों को जलोदर हो जाए। तो इसका मतलब इट मीन्स कि अब ये जो बात कह रहे हैं वो ये कि एक तरीके से पूरी संस्कृति जो मगध में थी, वो ब्राह्मणिकल कल्चर को नहीं फॉलो करती थी, वो संस्कृत नहीं बोलती थी, प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। अगर आप बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो स्टार्टिंग फेज के सरमन्स जो दिए गए, उपदेश दिए गए इन टीचर के द्वारा, उनको देखिए। महावीर स्वामी ने अर्धमागधी में उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने भी पाली भाषा को, पाली स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया, प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए, उन्होंने संस्कृत को नहीं अपनाया। तो इस तरीके से उनके कल्चर अलग थे। महापद्मनंद जो शूद्र था, शासक बना, जो वर्ण सिस्टम को विरोध चेंज करता था, इट मीन्स उस पर चोट करता था। पुष्यमित्र सुंग जो ब्राह्मण था, शासक बना। तो इस तरीके से तमाम सारे आपको यहाँ पे कल्चरल रिवोल्यूशंस भी दिखाई देगा। ये भी कारण थे मगध के डेवलपमेंट के। तो इसके आधार पे राइज ऑफ मगध को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिल्म लेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।